निज्जर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कनाडा और भारत आमने सामने हो गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही कनाडा पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने निज्जर की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ शामिल हैं। The following 3 individuals were charged for this homicide. 22-year-old Karan Brar, who's an Indian national, who was residing in Edmonton, Alberta. 22-year-old Kamalpreet Singh, who was an Indian national, who was also residing in Edmonton, Alberta. 28-year-old Karanpreet Singh, who is also an Indian national, residing in Edmonton, Alberta. This investigation does not end here. We are aware that others may have played a role in this homicide, and we remain dedicated to finding and arresting each one of these individuals. कनाडा पुलिस ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्ध उस ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनको भारत सरकार ने खालिस्तानी निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। 3 suspects have been arrested and charged for their alleged involvement in the killing of Mr. Najjar. I will underscore that today's announcements are not a complete account of the investigative work currently underway. There are separate and distinct investigations ongoing into these matters, certainly not limited to the involvement of the people arrested today, and these include investigating connections to the government of India. कनाडा पुलिस की माने तो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी संपर्क हैं। ये सभी साल 2021 में टेम्परेरी वीजा लेकर कनाडा आए थे। अब इस गिरफ्तारी को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जांच जारी है और स्पष्ट जांच में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के शामिल होने तक सीमित नहीं है। बता दें कि ट्रूडो कई मौकों पर निज्जर की मौत मामले में नई दिल्ली की भूमिका का भी दावा किया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कनाडा को कानून सम्मत देश बताते हुए सिख कनाडाई लोगों को आश्वस्त किया है कि उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I need to begin, somewhat awkwardly perhaps, but importantly, to acknowledge the arrests that were made in relation to the murder of Mr. Najjar. As the RCMP stated, the investigation remains ongoing, as does a separate and distinct investigation not limited to the involvement of the 3 people arrested yesterday. It is a rule of law country with a strong and independent justice system, as well as a fundamental commitment to protecting all its citizens. I know that many Canadians, particularly members of the Sikh community, are feeling uneasy and perhaps even frightened right now. Well, every Canadian has the fundamental right to live safely and free from discrimination and threats of violence in Canada. कनाडा के पीएम ट्रूडो के बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा ने अभी तक निज्जर हत्याकांड से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया है और न ही उनकी पुलिस एजेंसियां हमारे साथ सहयोग करती हैं। May have been arrested, the police may have done some investigation, but the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. दरअसल 18 जून 2023 की शाम को सरे शहर के एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगातार भारत पर लगाता रहा है। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में घोषणा की थी कि कनाडाई अधिकारी भारतीय सरकारी एजेंटों के कनाडाई नागरिक निज्जर की गोलीबारी में हत्या से जुड़े किसी भी संभावित लिंक को लेकर जांच कर रही है। हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह से बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। हालांकि कनाडा के इस तरह के आरोपों के बाद से दोनों ही देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई है और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी हटा दिया था। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद वीजा सेवाएं बहाल कर दी गई थी। लेकिन आज भी कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खी बरकरार है।
बता दें कि पंजाब के जलंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला हरदीप सिंह निज्जर 80 के दशक में ही खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो गया था। उसके बाद साल 1997 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आने के बाद निज्जर देश छोड़कर कनाडा पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।